السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کہانی لیٹتے ہی نیند آ گئی کا 19واں حصہ۔ دیکھ لیا جو دیکھنا تھا، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی حیران مجھے دیکھتے رہو گے؟ میں نے کوئی جادو وادو نہیں چلایا، تم نے جو بھی خواب دیکھا وہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ تم نے کیوں کر آ رہے ہیں وہ خواب۔ ہاں بس مجھے علم ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو۔ رمیز کو پریشان دیکھ لائبہ مسکراتی ہوئی اس سے کہتی ہے، میری پریشانی پر تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے نرگس کے بھائیوں نے ہر اس شخص کو مار ڈالا ہے جو نرگس اور میرے معاملے سے جڑا تھا، پھر انہوں نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ میں تو کئی سال سے یہاں ہوں، آخر اس میں غلطی میری بھی تھی، اکیلی نرگس کی نہیں، سارے بے قصور لوگ مارے گئے۔ کیا نرگس کے بھائیوں کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ اور اس بار تو خواب میں انہیں میرا بیٹا بھی مل گیا ہے، یا نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ میں تو احسن کا چہرہ بھی دیکھ نہیں پایا۔ رمیز لائبہ جنزادی پر غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے، رمیز ناراض نہیں ہوتے، میں تم پر ہنس نہیں رہی، وہ تو میری فطرت ہی ایسی ہے، تمہیں دیکھ کر چہرے پر اداسی کہیں غائب سی ہو جاتی ہے میری۔ لائبہ محبت سے رمیز کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ رمیز مایوس لائبہ کی دنیا میں پھیلی رنگینیاں دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر یہ ساری رنگینیاں اسے بے معنی اور بیکار لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا سی جاتی ہے اور چہرے کی مایوسی اس کا درد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ رمیز کو غمگین دیکھ لائبہ نے رمیز کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، ہر ایک کو سزا ملے گی جس نے بھی غلط کیا ہے، میں ہوں نا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کاش کہ تم بہت پہلے میرے پاس آ جاتے تو بہت لوگ زندہ ہوتے آج۔ خیر جو ہوا سو ہوا، تم پریشان مت ہو، تم نے جو دیکھا وہ گزرا ہوا کل تھا، اور جو باتیں اور واقعات گزر چکی اس پر دکھ و افسوس کیوں کرنا؟ اب یہ سب چھوڑو، چلو میں تمہیں اپنی دنیا گھماتی ہوں، پتہ نہیں پھر کب تم سے ملاقات ہو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، جانے دو مجھے، کافی وقت سے میں یہاں ہوں، اور رہی بات میرے نرگس اور ان معصوم لوگوں کے قتل کا بدلہ لینے کی، تو میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہی ان سے اپنے حساب سے بدلہ لے گا، تم پریشان نہ ہو اور خود کو گنہگار مت بناؤ۔ رمیز لائبہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہتا ہے، ہائے تمہاری اس ادا پر میں قربان ہو جاؤں، اور یہ جانے کہ کیا رٹ لگا رکھی ہے، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ پھر چلے جانا، لائبہ محبت بھرے لہجے میں کہتی ہے۔ نہیں کہا نا تمہیں میں نے، مجھے جانے دو، رمیز تھوڑا ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے چلے جانا، مگر جاتے ہوئے میرا ایک کام کرتے جاؤ، اگر تمہیں صحیح لگے تو، لائبہ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیسا کام کرنا ہے، رمیز اداس لہجے میں کہتا ہے۔ ہاں تو سنو، میں جس پیڑ پر رہتی ہوں اس کے چاروں طرف ایک عالم نے 4 تعویذ زمین میں دبا دیے ہیں، تاکہ میں یہاں سے آگے یا تمہاری دنیا میں نہ جا سکوں۔ اگر تم وہ سارے تعویذ نکال دو تو میں آزاد ہو جاؤں گی، لائبہ نے رمیز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر کسی عالم نے تمہیں حصار باندھ کر قید یا تمہارے حدود سیمت کیے تو پھر میں کیوں تمہیں آزاد کروں؟ کیا پتہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو، رمیز سوچتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے رمیز، میں نے یا میرے دنیا کے کسی بھی جن نے کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اور نہ ہی پہنچائیں گے۔ اصل میں ہم نیک جن میں سے ہیں، ہماری دنیا کے زیادہ تر جن بس رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لائبہ نے سمجھاتے ہوئے رمیز سے کہا۔ تو پھر اس عالم نے تمہاری حدیں محدود کیوں کی؟ رمیز لائبہ سے پوچھتا ہے۔ ایک گناہ ہو گیا تھا مجھ سے، لائبہ نے مختصر سا کہا۔ گناہ؟ کیسا گناہ لائبہ؟ رمیز نے پوچھا۔ ماشاءاللہ رمیز، تم نے آج شاید پہلی بار میرا نام اپنی زبان سے لیا ہے، لائبہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ اس میں اتنا تعجب کی کیا بات ہے، رمیز نے کہا۔ اپنی محبت کے منہ سے اپنا نام سننا اپنے آپ میں خوشی کی بات ہوتی ہے، خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گے، لائبہ نے کہا۔ ہاں میں کیسے سمجھوں گا بھلا؟ خیر یہ تو بتا دو کہ آخر اس عالم نے جو بھی کیا کیوں کیا، آخر کون سا گناہ ہوا تھا تم سے؟ رمیز اس گناہ کا نام محبت ہے۔ مجھے آج سے کئی سال پہلے، جب تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے،
तब एक आलिम के बेटे से मोहब्बत हो गई थी। सिर्फ मैंने उससे मोहब्बत का इजहार किया था, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था मैंने। फिर भी उसने और उसके बाप ने मिलकर मुझे इस जगह पे कैद कर दिया। मैंने भी उस आलिम के बेटे का ख्याल अपने दिमाग से कब का निकाल दिया था। फिर एक रोज कई साल बाद मुझे तुम मिले और दोबारा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। इससे पहले कि मैं तुमसे मदद लेती, तुम भी गायब हो गए। लाइबा उदास लहजे में रमीज को सारी बातें बताती है। तुम्हें मोहब्बत के लायक अपनी दुनिया में कोई नहीं मिला क्या, जो इंसानों के पीछे पड़ी हो तुम? रमीज कहता है तो लाइबा चिढ़ सी जाती है। जनाब, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं है, ये आपको कब किससे हो जाए कोई नहीं जानता, और वैसे भी हमें इंसान बहुत पसंद आते हैं। लाइबा ने जवाब दिया। सही कहा तुमने, मोहब्बत पे किसका जोर है, ये कभी भी किसी से हो सकता है। जिसे किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए, फिर वो शख्स किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर पाता है, वो तो सिर्फ उस शख्स का होकर रह जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। रमीज थोड़ा उदास लहजे में कहता है। नरगिस भले इस दुनिया में नहीं, मगर वो खुशनसीब है कि उसे तुम्हारी तरह कोई मोहब्बत करने वाला मिला, जो आज भी उसके जाने के बाद सिर्फ उससे मोहब्बत करता है। बाकी दुनिया की खूबसूरती तुम्हें दिखती ही नहीं, लाइबा ने धीमे लहजे में रमीज से कहा। रमीज नहर किनारे बैठ आंखें मूंद नरगिस को याद करने लगता है। लाइबा खड़े रमीज को मोहब्बत से देख रही होती है। उस जादुई दुनिया में अलग सा सुकून और मोहब्बत से भरा माहौल बन सा जाता है। रमीज अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए खड़ा होता है और कहता है, चलो मुझे बताओ कहाँ है तावीज़, मैं निकाल देता हूँ, मुझे कब्रिस्तान भी जाना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। लाइबा रमीज का हाथ पकड़ते हुए कहती है। रमीज भी उसका हाथ थामे बेड़ी के पेड़ से बाहर आ जाता है। लाइबा उसे इशारे से वो सभी जगह बता देती है जहाँ तावीज़ दबी होती है। मैं कुदाल लेकर आता हूँ कब्रिस्तान से। रमीज कहता है, अरे नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये लो मेरे पास भी। लाइबा रमीज को कुदाल और बाकी औजार थमाते हुए कहती है। काफी देर खुदाई के बाद रमीज वो चारों तावीज़ निकाल लेता है, जो कांच की बोतलों में भर कर जमीन में काफी अंदर दबी हुई रहती है। और अब लाइबा आजाद होती है। तुम आजाद हो और अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ, रमीज कहता हुआ जाने लगता है। लाइबा खामोश उदास उसे जाते हुए देख रही होती। तभी उसे ख्याल आता है कि अब वो आज़ाद है, तो वो फौरन रमीज के पास आ जाती है और उसके गले लग जाती है और धीमे से उसके कान में कहती है, शुक्रिया मेरी पाक मोहब्बत, तुम हमेशा याद रहोगी मुझे, और मेरे लब हमेशा तुम्हारे हक में दुआ मांगेंगे, खुदा हाफिज़। कहते हुए लाइबा गायब हो जाती है और रमीज कब्रिस्तान की ओर चली। अरे रमीज भाई, कहाँ गायब हो गए थे आप? सुबह से ना जोहर की नमाज में थे आप और ना ही असर की, सब खैरियत तो है? रमीज को मस्जिद की तरफ आता देख इमाम साहब ने पूछा। माफी चाहता हूँ इमाम साहब, मैं आपका छाता लेकर जरा गांव की सीमत चला गया था, किसी से मिलना था मुझे। ये लीजिए आपका छाता, मैं वजू करके आता हूँ नमाज के लिए। रमीज माजरत करते हुए कहता है और इमाम साहब का छाता उनके पास रखते हुए चला जाता है। रात का अंधेरा चारों ओर फैलने लगता है। बारिश अपने रफ्तार से धीमी धीमी बरस रही होती है। हवाएं भी शोर मचाती हुई चल रही होती है। रमीज हाथ में लालटेन लिए कब्रिस्तान के दोनों तरफ के दरवाजे को बंद कर अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट जाता है। ठंडी सर्द हवाएं उसे एक अलग सा सुकून बख्शती हैं और वो नींद की आगोश में चला जाता है। सुबह दरवाजे पर तेज दस्तक से रमीज की आंखें खुलती हैं। आज काफी दिन बाद वो सुबह को बिना किसी ख्वाब को देखे जगा होता है। आ रहा हूँ भाई, क्यों इस तरह दरवाजा बजा रहे हो? दरवाजे पर होती हुई दस्तक को सुन रमीज कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे अब्बा और चाचा का इंतकाल हो गया है, उनकी कब्रें खोदनी है। आज 10 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द कब्रें तैयार कर दें। सामने खड़े दोनों लड़कों में से एक लड़का परेशान होते हुए कहता है, ठीक है, मैं वक्त पर तैयार कर दूंगा, अभी वक्त है, पहले मैं फजर की नमाज अदा कर आऊं। रमीज कहता है तो लड़के रमीज को नाम और कब्र की लंबाई बताकर वापस चले जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ भाई, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, वो ज़रूरी खबर देनी थी आपको। रमीज़ को मस्जिद में आता देख इमाम साहब कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, ऐसी कौन सी बात है इमाम साहब, सब खैरियत तो? रमीज़ इमाम साहब के करीब बैठते हुए कहता है, असल में बात यह है कि कल रात में मुझे 2 लड़के बुलाने आए कि और कहा कि अचानक से उनके वालिद की तबीयत खराब हो गई है, वो अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं, ऐसा जैसे मालूम हो उन पर किसी का साया हो और वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बातें सुन मैं उनके साथ चल दिया। जब उनके घर पहुंचा तो देखा वो और कोई नहीं, आपकी मोहब्बत नरगिस के दोनों भाई थे, जो हाथों में ब्लेड लिए जगह जगह से खुद को ही काट रहे थे। उनकी बीवी और उस बच्चे उन्हें रोकते तो ये दोनों उन्हें भी ब्लेड से काट देते। किसी का हाथ तो किसी के पेट पर ब्लेड से काट दिया उन्होंने। सब के सब लहूलुहान दिख रहे थे। एक पल को तो मेरी भी जान हलक में अटक गई कि कहीं ये मुझ पर ब्लेड न चला दे। इमाम साहब ने कहा, क्या बात कर रहे हो आप इमाम साहब, नरगिस के भाई खुद को मार रहे थे? रमीज़ हैरान होते हुए कहता है, हाँ रमीज़ भाई, मैंने दुआएं पढ़ पढ़ कर उन पर दम किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। क़यामत सा मंजर था वो, क़यामत का मंजर था वो। और परेशानी तो और तब पेश आई रमीज़ भाई, जब दोनों भाई मेरे और अपने पूरे परिवार के सामने एक दूसरे का गला ब्लेड से काट देते हैं और मेरी आंखों के सामने ही ढेर हो गए। इमाम साहब अपने पेशानी पर पड़े और पसीने को पोंछते हुए कहते हैं, अल्लाह खैर करे। इमाम साहब, इसका मतलब सुबह में जो 2 लड़के कब्र खोदने के लिए कह गए वो इन्हीं दोनों भाइयों की कब्र है। अल्लाह उनके गुनाह को माफ़ करे। रमीज़ एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है, हाँ रमीज़ भाई, वैसे भी उन्होंने जो किया उसका अंजाम यही होना था। खैर चलिए अब फजर की नमाज अदा कर लेते हैं। इमाम साहब कहते हैं। फजर की नमाज पढ़ रमीज़ कब्रिस्तान की तरफ चल देता है नरगिस के भाइयों की कब्र तैयार करने। तभी उसे सामने से आती हुई वही नकाबपोश औरत दिखती है। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 19वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो मैं हाजिर रहूंगी अगले हिस्से में रात। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें और सुनते रहे लेटते ही नींद आ गई। खुदा।